Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of inequalities and modulus. So, let us first go through a basic concept of modulus. What is the modulus? Mod of x is modulus of x as it is known, and if x is greater than 0, then mod of x is equal to x. If x is equal to 0, then also this is equal to x. If x is less than 0, in that case modulus of x is equal to minus x. So for example, if we take mod of x minus 2 is equal to 3, and you have to solve this modulus equation. So mod of x minus 2, since we are taking mod of x minus 2, so x को हम 2 से कनेक्ट करेंगे. If x is greater than equal to 2, in that case mod will open with the positive sign, यानी mod of x minus 2 will be equal to x minus 2. So x minus 2 will be equal to 3, and hence x will be equal to 5. And if x is less than 2, not equal to, less than 2, in that case mod will open with a negative sign, यानी mod of x minus 2 will be equal to minus of x minus 2. So minus of x minus 2 will be equal to 3, and hence this will be minus x plus 2 equal to 3. So x will be equal to 2 minus 3, and hence minus 1 will be the, so there will be two solutions, 5 and minus 1. That is the basic approach of modulus. But there is another approach, the concept of modulus, there is another approach where we can understand modulus as the absolute distance. For example, in the previous question, we had to identify the distance, that mod of x minus 2 or distance of x from 2 should be equal to 3. So if modulus is an absolute distance, so basically 2 is a point on number line, or x is that point which is at a distance of 3. X is that particular point which is at a distance of 3. So 3 का distance could be on the right hand side. So 2 plus 3 होगा, 3 का distance चाहिए. 2 plus 3 will be equal to 5. So 5 could be one of the solutions. It could also be in the left hand side. So minus 3. The other solution will be minus 1. So there will be two solutions, minus 1 and 5. Is it clear? ठीक है. And this makes the concept slightly easier. For example, if we have to solve equation mod of x minus 2 plus mod of x minus 5, and this is equal to 7. Now we have to solve this equation. So basically distance of x from 2 and distance of x from 5, total sum is equal to 7. Total sum is equal to 7. So we will demarcate 2 and 5 on the number line. Fine, 2 and 5 in the number line. Now if x is between 2 and 5, if x is between 2 and 5, तो distance का sum कितना होगा? Sum will be equal to 3. For example, if x is equal to 3, this value will be 1, this value will be 3 minus 1 or 2, 2. Isn't it so? 3 का distance from 2 is 1 and distance from 5 is 2. So anywhere between 2 and 5, the sum will always be equal to 3. The sum will always be equal to difference of 5 and 2. Is it clear? So between 2 and 5, if x is between 2 and 5, the sum will always be equal to 5 minus 2, which is equal to 3. And if we go left hand side, left of 2, in that case, for example, if we go to 1, now क्या होगा distance का sum? From 2 this is equal to 1, and from 5 this is equal to 4. तो sum is equal to 5. Basically in that case जब हम जाएंगे when x is less than 2, तो जितना भी 2 से लेस होगा x, ठीक है, जितना भी 2 से लेसर होगा x, उतना पोर्शन ऐड होगा 2 टाइम्स इन द डिस्टेंस का डिफरेंस, यानी कि 3 में. तो 3 प्लस 2 टाइम्स द डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है? d यहां पे क्या है? d इज 2 माइनस x, दैट इज द डिफरेंस, एंड दिस विल बी आवर टोटल सम. इज इट क्लियर? अब आपको 7 बनाना है, इसको 7 बनाना है. वी हैव टू मेक इट 7. So d should be equal to 2. To make it 7, d should be equal to 2, because 3 plus 2 into 2 is 7. So our solution will be 2 minus 2.
which is equal to 0. So at x equal to 0, we will have our solution. X equal to 0 is at a distance of 2 from 2 and at a distance of 5 from 5. 2 plus 5 is equal to 7. Similarly, जब 5 से right hand side में जाएंगे तो at a distance of plus 2 which is at 7, we will also get our solution. Is it clear? ठीक है? So we'll get two solutions, 0 and 7. Now if there is a general modulus that is given, x mod of x minus 3 plus mod of x plus 5, and we have to identify what will be the minimum value of this modulus function. Minimum value of this modulus function. So basically we have to identify the distance of x, absolute distance of x from 2 points. One is minus 5 and other is 3. तो -5 और 3 से डिस्टेंसेस का जो सम है दैट शुड बी मिनिमम. और मिनिमम कब होगा? जबकि x हमारा x इज बिटवीन -5 एंड 3. देन द सम विल बी मिनिमम. सम कभी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज सम है एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस का. अब अगर हमारा x कहीं पे भी आएगा, इफ x इज लेट अस से हियर, सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस सम विल बी इक्वल टू दिस मच विच इज 3 plus 5 8 यूनिट्स. तो सम विल बी इक्वल टू 8 यूनिट्स एंड दैट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. जब हमारा x विल बी हियर तो दिस सम विल बी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विच विल बी ग्रेटर देन 8. और अगर x हमारा 3 से बड़ा होगा, इन दैट केस ऑल्सो द डिस्टेंस विल बी दिस वन प्लस दिस वन. सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8. क्लियर? जब भी समेशन होगा तो वहां पे जिन पॉइंट से हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट विल बी आवर आंसर फॉर मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी इन सच ए केस. और अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 5, एंड नाउ यू वांट टू नो कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा. व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे कभी भी नहीं पूछा जाएगा बिकॉज मिनिमम वैल्यू इन सच ए केस विल बी इक्वल टू व्हाट. Think about it. -5 or 3. Okay, now we are taking difference of these two. So if let us say point is here, तो difference क्या होगा in that case? Difference between distances, this will be distance from -5 and this will be distance from 3. So if we subtract these two, we'll get this value. Isn't it so? और x कहीं पे भी हो, कहीं पे भी lie करे. Or similarly for the left hand side, so the difference will always be equal to 8 or -8, 8 or -8 depending upon कि हम किस साइड में जा रहे हैं. For example, in this case, mod of x minus 3 will be this distance which is d and this is d plus 8. So d minus d plus 8, so definitely this will be -8. So if x is greater than 3, this will be -8, and if x is less than -5, this will be equal to 8, and if x is between these two, this will be less than 8. For example, if x is right in the middle, -5 plus 3 by 2, यानी कि -1 पे है. If x is at -1, then difference will be equal to 0 because this is also 4, this is also 4. So minimum value will be equal to 0. Not 0. Minimum value will be equal to -8. -8 होगा, 0 नहीं होगा. ठीक है? Minimum value will be equal to -8. Maximum value कितना होगा? Maximum value will be equal to 8. This is minimum and this is maximum. So is the understanding of modulus clear with this one? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं and we'll see the approach in questions as well. So question number 1 is this one. The sum of the possible values of x in the equation mod of x plus 7 plus mod of x minus 8 is equal to 16. Sum of the possible values of x. So difference of x from -7 and 8. यही तो पता लगाना है. सो -7 और 8 के बीच के अगर x कहीं पे लाई करेगा तो क्या वैल्यू होगा. इफ x इज बिटवीन -7 एंड 8, तब फिर क्या वैल्यू होगा. सम ऑफ दीज टू, यानी कि डिफरेंस कितना है इनके बीच का, दैट इज 15 यूनिट्स. सो इन दैट केस सम वुड हैव बीन 15 यूनिट्स, बट वी नीड टू सॉल्व फॉर 16, यानी कि 1 ज़्यादा होना है 15 से. 15 से 1 ज़्यादा होना है. तो अगर हम सिर्फ 0.5 डिस्टेंस चले जाएं लेफ्ट साइड में 0.5 डिस्टेंस चले जाए, इन दैट केस 0.5 ऐड हो जाएगा हमारा mod of x plus 7 में भी, और 0.5 ऐड हो जाएगा mod of x minus 8 में भी. सॉल्यूशन विल बी 16 ओनली. सो -7.5 विल बी अवर फर्स्ट सॉल्यूशन. इज इट क्लियर?
ठीक है, बिकॉज इन दैट केस दिस विल बी, दिस डिस्टेंस फ्रॉम -7 विल बी 0.5 and distance from 8 will be 15.5, total 16. Similarly 8 से right hand side में 0.5 चले जाएंगे तो 8.5 will also be our solution by the same logic. तो our sum of the possible values will be -7.5 plus 8.5 which is equal to 1. So our answer will be 1 only. Is it clear? ठीक है, बीच में कहीं पे भी it will always be 15. So option B will be the answer. Given a is equal to mod of x plus 3 plus mod of x minus 2 minus 2 times mod of x minus 2x minus 8 का mod, the maximum value of mod of a is equal to what? So a is equal to mod of x plus 3 plus mod of x minus 2 minus 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 times mod of x minus 4. ठीक है, सो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 and x equal to 4. Critical points are -3, 2 and 4. पहले कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं, उसके बाद में we'll see the number line approach. So there can be 4 cases. X can be less than -3. If x is less than -3, तो सारे के सारे जो मॉड्यूलस है हमारे वो माइनस साइन के साथ ओपन होंगे. सो a will be equal to -x -3 -x प्लस 2 एंड लास्ट वाला विल बी -x माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2x एंड -8. सो x 2x सब कैंसिल आउट हो गया, ये अपना -9 हो गया. बट मॉड ऑफ a लेना है, मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू 9. इन दैट केस सेकेंड केस होगा -3 से लेके x इज बिटवीन 2. इन दैट केस जो फर्स्ट मॉड्यूलस है हमारा वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, बाकी सारे के सारे मॉड्यूलस हमारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे. तो दिस विल बी x प्लस 3 -x प्लस 2 प्लस 2x -8. सो x से -x गॉट कैंसिल आउट एंड दिस इज नाउ 2x प्लस 5 -8 2x -3. सो एट x इज इक्वल टू -3 दिस विल बी -9 ऑब्वियसली, एंड एट x इक्वल टू 2 दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि 2 के बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है, तो x इक्वल टू 2 पे दिस विल बी 4 -3 1. नाउ व्हेन x इज बिटवीन 2 एंड 4, तो फर्स्ट 2 विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन. सो a विल बी इक्वल टू x प्लस 3 प्लस x minus 2 प्लस 2x minus 8. So this is 4x minus 7. x इक्वल टू 2 पे तो 1 ही आने वाला है, x इक्वल टू 4 पे क्या वैल्यू आएगी 16 minus 7. So this is equal to 9. And when x is greater than 4, तो a will be सारे के सारे अब पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, तो दिस विल बिकम x प्लस 3 प्लस x minus 2 minus 2x प्लस 8. सो x के कोफिशिएंट x सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस विल बिकम ओनली 9 क्लियरली. सो इट विल ऑलवेज बी 9 फॉर x ग्रेटर देन 4 एंड ऑलवेज बी -9 फॉर x लेस देन -3. क्योंकि हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a पूछ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 ओनली. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके, ठीक है. अब यही चीज़ अगर हम डिफरेंसेस के अप्रोच से करते, नंबर लाइन अप्रोच से करते, सो इन दैट केस देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स -3 2 and 4, and we are taking difference from distance from -3, distance from 2 and subtracting distance from 4 2 times. So if we take first critical point पे क्या वैल्यू होगा, -3 पे वैल्यू क्या होगा, if we take value at -3, तो when x is equal to -3, in that case ये तो पहला वाला तो डिस्टेंस 0 हो गया. 2 से डिस्टेंस कितना है 5 का है, और 4 से डिस्टेंस कितने का है 7 का है. सो 5 माइनस 14 -9 होगा. व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब 2 पे है, इन दैट केस 3 से कितना होगा 5 का डिस्टेंस होगा, 2 से 0 है, और 4 से 2 का डिस्टेंस है तो -4, सो 1 होगा. व्हेन x इज दैट इक्वल टू 4, इन दैट केस 3 से डिस्टेंस -3 से डिस्टेंस कितना है, दैट इज 7. 2 से 2 का डिस्टेंस है और 4 से तो ऑब्वियसली 0 है, तो 7 + 2 9 हो गया. दीज आर द वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट्स. इजंट इट सो? ठीक है, बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो इनसे छोटी ही आएंगी, वो इनसे छोटी वैल्यूज आने वाली है. और
लेट अस से हम ग्रेटर देन 4 पे बात करें तो ग्रेटर देन 4 पे क्या सिचुएशन बनेगा, एट ग्रेटर देन 4 कोई भी वैल्यू ले ले, अगर हम 5 ले रहे हैं लेट अस सपोज, तो 5 का देखेंगे डिफरेंस हम तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्व क्या करना है कि जहां से कि हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 4 है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x का 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1 और फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इफेक्टिवली क्या है, ये नलीफाई हो जाएगा जब भी हम 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए चेक करेंगे और नलीफाई हो जाएगा जब माइनस 3 से छोटी वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस 9 फॉर लेस देन माइनस 3 एंड 9 फॉर ग्रेटर देन 4। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ये कोफिशिएंट हमारे नलीफाई हो जा रहे हैं। ये तब नलीफाई नहीं होते जब 2 की बजाय यहाँ पे 3 होता है, तब नहीं नलीफाई होता है। इन दैट केस अवर सॉल्यूशन वुड हैव बीन, बिकॉज तब ये नलीफाई नहीं होते, तो तब हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ज्यादा है तो दिस विल डिटरमाइन, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन हमारा कितने तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कुछ पूछ रहे हैं, तो तब हमारा सॉल्यूशन कुड हैव बीन इन्फिनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होती जाएगी, तो टोटल जो हमारा ए है, ए विल बी मोर नेगेटिव जितना हम 4 से राइटवर्ड्स जाएंगे, जितना ये वैल्यू बड़ा होगा, बिकॉज कोफिशिएंट इसका लार्जर होगा उस केस में। इज इट क्लियर? और मॉड ऑफ ए विल मूव टू क्लोजर टू इन्फिनिटी, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इट विल बी इन्फिनिटी इन दैट केस, क्योंकि कोफिशिएंट बड़ा है। बट कोफिशिएंट अगर सेम रहेगा जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो डेफिनेटली वी विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू एंड नॉट इन्फिनिटी, और डेफिनेट वैल्यू विल बी एट क्रिटिकल पॉइंट, तो -3 and 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a, b, c and d are 4 different positive integers selected from 1 to 25, then the highest possible value of a plus b plus c plus d divided by a plus b plus c minus d would be what? a plus b plus c plus d upon a plus b plus c minus d, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। If we want to find maximum value, in that case numerator should be as maximum as possible, क्योंकि हमें highest value चाहिए, और denominator should be as minimum as possible। जितना छोटा denominator होगा उतना ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा बड़ा numerator होगा उतना ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। This is what our approach should be in any fraction वाला क्वेश्चन, जहाँ पे कि हमें मैक्सिमाइज करना है उसको। ठीक है, नाउ वी नो कि ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 25, तो अगर डिनोमिनेटर को हमें मिनिमाइज करना है, और क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं तो इंटीजर ही आएगा, तो कितना मिनिमम वैल्यू आ सकता है, थिंक अबाउट इट। ऑल्सो हमें मिनिमाइज करना है बट पॉजिटिव रखना है, बिकॉज पूरे फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमें इसको पॉजिटिव रखना है, मिनिमाइज तो करना है बट पॉजिटिव रखना है। सो ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, जीरो तो नहीं कर देंगे इसको, ठीक है, बिकॉज जीरो कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट थिंग, दिस शुड बी इक्वल टू 1, ओके, एंड इफ दैट हैज टू बी इक्वल टू 1, और हमें पता है कि 1 से लेकर 25 के बीच की वैल्यूज हो सकती हैं, और हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि प्लस डी शुड बी मैक्सिमम और माइनस डी शुड बी मिनिमम। तो अगर माइनस डी को हमें मिनिमम रखना है, यानी कि इक्वल टू 1 रखना है, सो वी कैन से कि डी को अगर हम 25 रखते हैं और a प्लस बी प्लस सी को 26 रख दें, तो दैट विल बी फाइन, दैट विल बी ओके, इजंट इट सो? दैट वे विल गेट अवर सॉल्यूशन पॉसिबली। और अगर ऐसा होगा तो फिर न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर विल बी 26 प्लस 25 और डिनोमिनेटर इज 26 माइनस 25, तो वैल्यू विल बी 26 प्लस 25 अपॉन 26 माइनस 25, और 26 तो आ सकता है ना, a प्लस बी प्लस सी तो 26 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिफरेंट वैल्यूज से। वो पॉसिबिलिटी भी हमेशा ध्यान देना है कि ये आना पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो ईजी है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आ जाएगा, 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे हमको जिसका सम 26 हो, और डी तो 25 हो ही सकता है, सो सॉल्यूशन विल बी 51, आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 51। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू पूछता इसी सेम फंक्शन के लिए, इसी सेम वैल्यू एक्सप्रेशन के लिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? अगर हमें मिनिमम करना है इन दैट केस एक अप्रोच तो यह है, डिनोमिनेटर शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, न्यूमरेटर शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट सिंस डिनोमिनेटर कैन ऑल्सो बी निगेटिव, भाई निगेटिव भी तो हो सकता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करें और डिनोमिनेटर को निगेटिव कर दें,
तो यही सेम चीज़ बस रिवर्स हो जाए, 51 की बजाय -51 हो जाए, या ऐसा कोई वैल्यू हो जाए, इजंट इट सो? दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। इज इट क्लियर? तो अगर हमको मिनिमम करना है यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ डिनोमिनेटर को मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम a प्लस बी प्लस सी माइनस डी कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट 1 वी कैन से दैट दिस टाइम वी कैन मेक इट इक्वल टू -1, और अगर इक्वल टू -1 कर देंगे तो फिर हमारा न्यूमरेटर को हमें लार्जेस्ट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, बिकॉज उतना ही निगेटिव जाएंगे हम। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे d को 26 कर नहीं सकते, d 25 हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी 24 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी 24 हो जाए, इजंट इट सो? एक तो ये केस बन गया। क्या कोई और केस पॉसिबल है? कोई और केस पॉसिबल है? बिकॉज किसी भी और तरह से अगर हम सोचेंगे तो, बिकॉज a प्लस सी को बढ़ाओगे तो उस केस में डिनोमिनेटर भी अपना चेंज होगा ना, ना, दिस इज द पॉसिबल केस। तो यहाँ पे हमारा जो सम आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी है 25, d इज 24, d है 25, तो टोटल आ जाएगा 49 बाई -1, तो -49 विल बी आवर मिनिमम वैल्यू। दिस विल बी आवर मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर सेम कंडीशंस हैं तो फिर a प्लस बी बाई सी, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी बाई सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a b एंड c आर इंटीजर्स एंड मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ b एंड इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ c, यानी कि a b और c का जो मॉड है दे आर नॉट इक्वल, मॉडुलस आर नॉट इक्वल, विच इंप्लाइज कि इफ a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 7, इफ a इज इक्वल टू 7 तो b और c फिर -7 नहीं होंगे, तो b और c फिर -7 नहीं हो सकते। दैट इज व्हाट इट मीन्स कि मॉडुलस उनके सेम नहीं है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a b c माइनस a प्लस b प्लस c? ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? नाउ सिंस वी नीड टू मैक्सिमाइज ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो जिस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं विच इज ए बी सी, दिस प्रोडक्ट दिस शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, एंड सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए प्लस बी प्लस सी, तो दिस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, एज मिनिमम एज पॉसिबल, एंड सिंस ए बी सी कैन ऑल्सो बी निगेटिव, इंटीजर्स है बट निगेटिव हो सकते हैं, तो दिस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। और क्योंकि हम ए इंटू बी इंटू सी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की, कि वो निगेटिव हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि जितना वो निगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो सम है वो पॉजिटिव होगा। सो वी शुड टेक आउट ऑफ ए बी एंड सी दो वैल्यूज को हम निगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि दो को निगेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा, तीनों का निगेटिव ले लोगे तो फिर प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को पॉजिटिव रखना है क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, तो आउट ऑफ दीज 3 2 शुड बी निगेटिव। लेटेस्ट से ए को लेस देन 0 ले लिया और बी को लेस देन 0 ले लिया, सी को पॉजिटिव ले लिया, क्लियर। और वो निगेटिव भी बड़े निगेटिव हो, प्रोडक्ट को बड़ा करना है तो सारे के सारे नंबर हमारे बड़े से बड़े होने चाहिए, यानी कि नंबर्स शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, 10 9 एंड 8 इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट सिंस 2 हैव टू बी टेकन एज नेगेटिव, तो और निगेटिव भी में भी हमें क्योंकि मिनिमाइज करना है, यानी कि बड़े वैल्यूज लेने निगेटिव में, तो -10 -9 दो नेगेटिव ले लिए और एक को +8 ले लिया। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देगा। सो द वैल्यू विल बी 10 × 9 × 8 720 माइनस -10 -9 +8, सो दिस इज -19 +8 यानी -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 720 + 11 दिस विल बी 731। So our answer will be 731, क्लियर। अगर कोई भी और वैल्यू लोगे, यानी कि -10 लिया और मान लो -8 लिया +9 कर लिया, इन दैट केस सम विल बी लेसर, यानी कि -18 + 9 यानी -9 होगा, तो 729 आएगा आंसर, जो कि लेस है 731 से। सो क्लियरली दिस अप्रोच शुड बी द गोल। 731 आंसर है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आती है बात? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटी के आते हैं, जो मॉडुलस के आते हैं, इनमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर इन क्वेश्चन में घबराने का क्या है? इजंट इट सो? तो आई बिलीव कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं।
Next is Vilma, Xavier, Yaska, and Zakir are 4 young friends who have a passion for integers. One day, each of them selects one integer and writes it on the wall. The writing on the wall shows that Xavier and Zakir picked positive integers, यानी कि x और z, because इनके फर्स्ट लेटर से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो यानी कि अगर Xavier और Zakir ने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, विच इंप्लाइज कि x इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन 0. यास्का पिक्ड अ नेगेटिव वन, यानी कि y इज लेस देन 0. वाइल विल्मा के बारे में पता नहीं है कि विल्मा ने कुछ भी लिया हो सकता है. विल्मा का नंबर कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0, कुछ भी हो सकता है. इफ देयर इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय द फर्स्ट लेटर, द फॉलोइंग इज ट्रू. इनइक्वालिटी इज गिवन है. फर्स्ट इनइक्वालिटी है w टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 4. सेकेंड इनइक्वालिटी है एक्स क्यूब प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2. थर्ड इज w टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2. एंड फोर्थ इज वाई स्क्वायर प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ओके, देखो जब भी ऐसी इनइक्वालिटीज हमको दी हैं, 4 इनइक्वालिटीज हैं, 4 अननोन हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे केस में? ऐसे केस में देखो, जो हमें एक चीज़ तो पता है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो पॉजिटिव हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं विच आर पॉजिटिव, और जो निगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करेंगे या पावर 4 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है, हमको पॉजिटिव नंबर ही देने वाला है. तो यहाँ पे एज वी कैन सी वाई इज लेस देन 0, बट एक्सप्रेशंस में वाई का स्क्वायर यूज हुआ है, वाई यूज नहीं हुआ है, तो वाई का स्क्वायर विल ऑल्सो भी पॉजिटिव. तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. वाई का स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, w टू द पावर 4 विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, और 0 वैल्यू कुछ भी हो, या तो अगर निगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा. w टू द पावर 4 है, और अगर 0 है तो 0 रहेगा. तो w टू द पावर 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0. बाकी तो वैसे ही पॉजिटिव है, बाकी तो वैसे ही पॉजिटिव है, इजंट इट सो? तो पहली इनइक्वालिटी हमारी है w टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4. और एक थर्ड इनइक्वालिटी है. ये इनइक्वालिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड वाली? बिकॉज यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू दिया है. अब अगर ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है और हम इनका लेस देन इक्वल टू देख रहे हैं, यानी कि दीज आर लेस देन समथिंग, तो वहाँ से हमें एक रेंज मिलेगा, ईजी होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू में कुछ भी पता नहीं है, बिकॉज कुड बी इन्फिनिटी. ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू से हमें कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलेगा. डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा हमेशा लेस देन इक्वल टू से, बिकॉज हमें पता है दीज आर ग्रेटर देन 0. क्लियर है? बिकॉज दीज आर ग्रेटर देन 0. 0 से तो बड़ी है और फिर 2 से छोटा है. फॉर एग्जाम्पल कि w टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2. नाउ वी नो कि वाई स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, w टू द पावर 4 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा. और दोनों का सम मिला के हमारा लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है. तो कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो या तो w हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि w 0 होना पॉसिबल है. अगर w 0 हुआ तो वाई स्क्वायर एट द मैक्स कितना हो सकता है? 1 हो सकता है. 2 अगर y इक्वल टू 2 होता है या -2 होता है, क्योंकि y नेगेटिव है, अगर y -2 होता तो y स्क्वायर 4 हो जाता. यानी कि ओनली पॉसिबल केस इज व्हेन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट इज द ओनली पॉसिबल केस. सेकंड केस बन सकता है व्हेन w टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो ये दो केसेस हमारे बने. पहले केस में वी नो दैट w इज इक्वल टू 0 एंड y विल बी इक्वल टू -1 बिकॉज y इज नेगेटिव. सेकेंड केस में w can be either +1 or -1 and y will definitely be equal to -1. और क्वेश्चन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उनके जो इंटीजर्स हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए. तो सेकंड में दोनों केसेस पॉसिबल, +1 -1. क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? दीज टू केसेस आर पॉसिबल. ओके, अब पहली वाली इनइक्वालिटी पे चलते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 वाली पे. वहां पे ये कह रहा है कि w टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 4. लेस देन इक्वल टू 4. अब हमको यहाँ पे क्या पता है? वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर w टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ के इसके केस क्या बन रहा है? या तो ये इक्वल टू 1 है या इक्वल टू 2 है. इफ दिस इज इक्वल टू 1, जो कि फर्स्ट केस में है, अगर फर्स्ट केस में है तो इफ w टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब प्लस जेड हमारा है, एक्स क्यूब प्लस जेड, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 4. तो सबका सम होना है. तो अगर हमारा एक पार्ट 1 आ गया तो 1 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो 4 - 1, यानी कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3. एक्स क्यूब प्लस जेड विल बी लेस देन इक्वल टू 3, इजंट इट सो? ठीक है, तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गया कि एक्स क्यूब प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 3. फर्स्ट केस में एक्स क्यूब प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 3, और क्योंकि एक्स और जेड दोनों ही पॉजिटिव है, तो एक्स क्यूब हमारा क्या हो सकता है? एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1. द ओनली पॉसिबल केस फॉर एक्स देन इज एक्स हैज टू बी इक्वल टू 1. एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 2. 2 पे तो 8 हो जाएगा. और अगर x इक्वल टू 1 है तो z क्या हो सकता है? z कैन बी 1 और 2. z कैन ईदर बी 1 और इक्वल टू 2. सेकेंड केस में
when w to the power 4 plus y square is equal to 2, in that case x cube plus z is less than equal to 2. तो सेकंड केस में तो पक्का है कि x is equal to 1 and z is also equal to 1. Is that clear? ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है. अब इसके बाद में बाकी इनइक्वालिटीज को देखते हैं. तो x क्यूब प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इज ऑल्सो गिवन. दैट इज ऑल्सो गिवन कि x क्यूब प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो अगर x क्यूब प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो डेफिनेटली पहले वाले केस में हमें क्या पता है कि फिर z इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, z हैज टू बी इक्वल टू 2. और सेकेंड वाले केस में तो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये फिर हमारा ये केसेस बने, एक्स क्यूब प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से एक पॉसिबिलिटी हमारी कम होगी. नाउ वाई स्क्वायर प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो सेकंड केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड विल बी इक्वल टू 2 ओनली, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं आ पाएगा. तो सेकंड वाला केस इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट वाला केस इज डेफिनेट. दीज आर द वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू, वाई, एक्स एंड जेड. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा. तो डब्ल्यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा और जेड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4. तो 6 आंसर आएगा ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? ठीक है, और क्योंकि समझाना था इसलिए इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, अदरवाइज जितनी छोटी वैल्यूज हैं यू विल इजीली डिड्यूस द आंसर विद वेरी फ्यू पॉसिबिलिटीज. इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज वी नो w टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2. तो यहाँ से दो ही केसेस बन रहे हैं क्लियरली, 0 1 और 1 1 वाला केस बन रहा है. और उसके बाद में फिर बाकी इनइक्वालिटीज से चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फाइंड z इफ इट इज नोन दैट माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 20 है, दैट इज गिवन. एंड सेकेंड इक्वालिटी है हमारा वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4z ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12. And x, y and z are positive integers. They are positive integers. So we have to identify z. Now we know x square minus y square को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. This will be equal to x plus y into x minus y and this is equal to 20. अब क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा जो सम 20 आ रहा है, डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो x plus y will be greater than x minus y, और x प्लस वाई हमेशा पॉजिटिव होगा. तो अगर x प्लस वाई पॉजिटिव है तो x माइनस वाई निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव होगा तो 20 उनका मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा. Isn't it so? तो बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड इफ बोथ आर ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं. एक केस बन सकता है हमारा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सेकेंड केस कुड बी x प्लस वाई इज 10, x माइनस वाई इज 2, क्योंकि x प्लस वाई हमेशा x माइनस वाई से बड़ा होगा. थर्ड केस कुड बी x प्लस वाई इज 5 एंड x माइनस वाई इज 4. अब सॉल्व करते हैं. देखो जब भी सॉल्व करोगे हमें पता है कि पहला केस बन रहा है, ये बात समझ ली, बस एक बार लिख रहे हैं. x प्लस वाई 20 है, x माइनस वाई 1 है. x कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ऐड द 2 डिवाइड बाई 2. तो 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 21 बाई 2 इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर. तो इंटीजर नहीं आएगा पहले वाले केस में, तो पहला वाला केस कैन नॉट बी आवर सॉल्यूशन इन फर्स्ट केस, क्योंकि सम जो है दैट इज ऑड. सम ऑफ बोथ 20 एंड 1 इज ऑड, तो ऑड डिवाइडेड बाई 2 वोंट गिव अस अ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन. सो फर्स्ट केस कैन नॉट बी पॉसिबल एंड बाय द सेम लॉजिक थर्ड केस भी पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली पॉसिबल केस इज 10 एंड 2. व्हेन x प्लस वाई इज 10, x माइनस वाई इज 2. In that case x will be equal to 6 and y will be equal to 4. तो x equal to 6 and y equal to 4 डेफिनेट वैल्यूज हमको मिल गई, सवाल खत्म हो गया ऑलमोस्ट. अब बस b वाला जो इक्वेशन इक्वालिटी है उसमें पुट कर देना है. तो x equal to 6 है, y equal to 4 है, यानी कि 4 का क्यूब, y का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर यानी कि माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 4z ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12. 4 क्यूब इज 64 माइनस 72 minus 4z greater than equal to minus 12. 64 minus 72 is minus 8. So minus 8 minus 4z है, ठीक है, minus 8 minus 4z greater than equal to minus 12. सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ. तो minus 12 plus 8 plus 4z less than equal to 0, which is 4z minus 4 less than equal to 0. So z less than equal to 1 is our condition, and since z is a positive integer, so the only possible case is when z is equal to 1.
Our answer will be Z is equal to 1 only, option B. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Next is consider 4 variables A, B, C and D and a function Z of these variables, and Z is equal to 15A square minus 3B to the power 4 plus C plus 0.5D. And then we have given that A, B, C and D are non-negative integers. Non-negative यानी greater than equal to 0 होंगे, greater than equal to 0 होंगे, and that all of the following relationship must hold. First है 2A plus B less than equal to 2, 2A plus B less than equal to 2, 4A plus 2B plus C less than equal to 12, 3A plus 4B plus D less than equal to 15. Z needs to be maximized. तो what value must D take? अगर Z को maximize करना है तो जो वैल्यूज हमारी पॉजिटिव में प्लस में दी है, एडिशन में दी है, यानी 15A स्क्वायर प्लस C प्लस 0.5D, these should be as maximum as possible. और माइनस कर रहे हैं हम 3B to the power 4, तो दिस वैल्यू शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, बिकॉज B to the power 4 तो पॉजिटिव है, तो दिस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी B हमारा या तो 0 हो या फिर 1 हो, बिकॉज 1 to the power 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. अगर ये 2 हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज 2 पे फिर 2 to the power 4 16 हो जाएगा, तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी. इजंट इट सो? तो B शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, प्रेफरेबली 0 और 1. इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है. तो अब हमें पहली इक्वालिटी क्या दी है, 2A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2. तो B हमारा अगर 0 आएगा, इफ B इज इक्वल टू 0, तो A कैन बी इक्वल टू 0 और 1. A कैन बी इक्वल टू 0 और 1. इजंट इट सो? बट प्रॉब्लम ये है, जब हम A को 0 करेंगे तो 15A स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो A शुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, मैक्सिमाइज करना है. तो इफ B इज 0, A शुड बी इक्वल टू 1. इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई कर रहा है. और अगर हम B को 1 ले लेंगे तो फिर A को 0 ही होना पड़ेगा, बिकॉज फिर A 1 नहीं हो सकता, फिर A 1 नहीं हो सकता है, और उससे बड़े का तो कोई सेंस ही नहीं बनता. B को 2 ले लो और A 0 हो जाए, कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज फिर हमारा Z मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा. इजंट इट सो? तो प्रेफरेबल केस क्या होगा, फर्स्ट वाला क्लियरली, क्योंकि सेकंड वाले में हमारा A 0 हो जा रहा है, यानी कि 15A स्क्वायर स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा, और C और D बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होंगे, क्योंकि C का पावर भी 1 है और D का पावर भी 1 है इस इक्वेशन में. इज इट क्लियर? एंड दैट इज वाई, और टोटल सम भी हमारा 4A प्लस 2B प्लस C इज लेस देन इक्वल टू 12. तो C और D बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, बहुत लार्ज वैल्यूज नहीं है, और A का कोफिशिएंट है 15, A स्क्वायर का कोफिशिएंट है 15, तो डेफिनेटली A शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बट फिर भी हम दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, बट ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में, एग्जाम कंडीशन में यू नो कि उससे कोई फायदा नहीं है A इज इक्वल टू 0 लेके हमारा सॉल्यूशन नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन में, बिकॉज C कैनॉट बी इक्वल टू 50 और 100 और 1000. ठीक है, C हार्डली, जब A और B पॉजिटिव है तो C की वैल्यू कितना आएगी, मैक्सिमम 12 आ सकती थी, और फिर B भी हमारा जब 1 हो जा रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी हमको. क्लियर है? ठीक है, एंड दैट इज वाई उनका कोई पावर भी नहीं है. पावर अगर स्क्वायर होता तो भी बड़ी बात थी, स्क्वायर होता तो बहुत बड़ी बात थी, बट स्क्वायर नहीं है. दैट इज द रियलिटी. एनीवे, दोनों केसेस में हम कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट केस में A और B हमारा ले लिया, तो नेक्स्ट हो गया 4A प्लस 2B प्लस C लेस देन इक्वल टू 12, और हमारा 4A प्लस 2B कितना आएगा, इफ A is 1, B is 0, 4A प्लस 2B आ जाएगा 4, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4, तो C इज लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, एंड C इफ C इज लेस देन इक्वल टू 8 और C को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो C मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 8. एंड बाय द सेम लॉजिक जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है हमारी 3A प्लस 4B प्लस D लेस देन इक्वल टू 15, सिंस A इज इक्वल टू 1, B तो 0 ही है, तो दिस इज इक्वल टू 3, तो D मैक्सिमम आ जाएगा 12. D मैक्स आ गया हमारा 12. और सेकंड वाली इक्वेशन में क्या होगा, व्हेन वी हैव टेकन A 0 B 1, तो अगर B 1 है हमारा तो दिस इज इक्वल टू 2, तो C हमारा आ जाएगा 10. सिमिलरली यहाँ पे दिस इज 4, तो दिस विल बी D विल बी 11. D 11 आ गया. ठीक है, पहले वाले में C 8 D 12, दूसरे में C 10 D 11. अब पूरी इनइक्वालिटी पे रखते हैं, यानी Z पे रखते हैं. Z की वैल्यू क्या आएगी पहले वाले केस में, व्हेन A B C and D आर 1 0 8 and 12, तो 15A स्क्वायर यानी 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस C विच इज 8 प्लस 0.5D यानी कि 6 हो जाएगा, माइनस 3 B टू द पावर 4, और B टू द पावर 0 ही है, तो दिस विल बी इक्वल टू 15 प्लस 8 प्लस 6 यानी कि 29. और सेकेंड केस में जब A इज इक्वल टू 0, तो पहला वाला वैल्यू 0 आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. और फिर हमारा C एंड D आर 10 एंड 11 एंड माइनस 3 इंटू 1, दिस विल बी 21, सॉरी 11 नहीं होगा, 11 बाई 2 है, दिस विल बी 5.5.
5.5 और छोटी वैल्यू आ जाएगी बिकॉज 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट भी उसका 0.5 है. सो दिस इज 15.5 minus 3, this will be 12.5. Definitely 29 is much greater option. एक सेकेंड, what value must D take question है. Okay, D is taking value 12. Option B is the answer. Clear? Okay. Next question. Next is, if 2 is less than equal to mod of x minus 1 into x mod of y plus 3, and the multiplication should also be less than equal to 5, and both x and y are negative integers this time. So we have to find the number of possible combinations of x and y. नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हमें सम या सब्ट्रैक्शन नहीं करना, हमें बस इतना पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे एक्स और वाई के. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो एक्स का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं 1 से, ठीक है, मॉड्यूलस का, और हमें पता है एक्स एक निगेटिव इंटीजर है. सो इफ एक्स इज अ निगेटिव इंटीजर, तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितना आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का. थिंक अबाउट इट. मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का निगेटिव वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा. अगर हम 1 से डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बहुत भी कम होगा, बहुत भी 1 के पास होगा, तो x कहां पे होगा, -1 पे होगा. वी आर टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड x इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो बहुत भी छोटू होगा, बहुत पास होगा तो भी -1 होगा, यानी मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा. सो मॉड ऑफ x माइनस 1 मिनिमम विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज x इज लेस देन 0. दैट इज वाई. अगर लेस देन 0 नहीं होता तो फिर तो 1 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, बट इन दिस केस सिंस x इज लेस देन 0, डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू 2 है. तो एक का हमें मिनिमम वैल्यू 2 पता चल गया, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो केसेस बना लेते हैं. मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ y प्लस 3, 2 से लेके 5 के बीच में होना है, फाइन. अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 हमारा इक्वल टू 2 है, तो मॉड ऑफ y प्लस 3 क्या हो सकता है, या तो इट कैन बी इक्वल टू, क्योंकि मॉड्यूलस है, ठीक है, इट कैन बी इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, 0 होने पे फिर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इट कुड बी इक्वल टू 1 और इट कैन बी इक्वल टू 2. 2 केसेस बन गए, ठीक है, 2 केसेस बन गए. फिर इट कुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 कैन आल्सो बी इक्वल टू 3. इन दैट केस देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर मॉड ऑफ y प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 1. मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 4, अगेन 1 ओनली. मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 5, अगेन 1 ओनली. क्लियर, ठीक है. एंड सिंस x हैज टू बी लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 से हमें एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है हर एक केस में. हर एक केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ इक्को सॉल्यूशन मिलेगा, 2 सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. क्लियर है, बिकॉज सिर्फ नेगेटिव वाला सॉल्यूशन हमको लेना होगा, पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे. तो हर एक केस में यहाँ पे हमें एक एक सॉल्यूशन मिलेगा. टोटल 5 केसेस हैं, सब में हमें मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा. चाहे तो सॉल्यूशन निकाल लें, पर हमको निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये जान लो कि हमें 1 सॉल्यूशन मिलने वाला है हर एक केस में. और मॉड ऑफ y प्लस 3 के लिए, क्योंकि हम y प्लस 3 का अगर देखें, y का हम डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं, -3 से. सो एज लॉन्ग एज हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज -3 से डिस्टेंस देख रहे हैं, तो अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल टू 2 तक है तब तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे. अगर मॉड ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 3 हम लेते हैं लेट अस से, तो हमें एक सॉल्यूशन तो नेगेटिव मिलता है, दूसरा मिलता है 0, और 0 हमें चाहिए नहीं, हमें तो नेगेटिव चाहिए. तो उस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता अगर 3 होता. या फिर मॉड y प्लस 3 अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर 4 होता है, 5 होता है, तब भी हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता. तो इज दैट क्लियर कि मॉड ऑफ y प्लस 3 जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू 2 है तब तक 2 सॉल्यूशन मिलेंगे. क्योंकि ये बात समझ जाओगे ना, तो उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, समझ जाओगे इस बात को. ठीक है, तो क्लियर है. मॉड ऑफ y प्लस 3 जब लेस देन इक्वल टू 2 है तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हमें फिर वहां पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा निगेटिव इंटीजर में. तो यहाँ पे हर एक केस में हमें 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. x से एक सॉल्यूशन, ठीक है, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, और यहाँ पे y से मिलेंगे 2 2 2 2 2. ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जितने हमें सॉल्यूशन मिलेंगे x से 1 और y से 2, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे फर्स्ट केस में, 2 इन द सेकंड केस, 2 इन द थर्ड केस, 2 इन द फोर्थ, 2 इन द फिफ्थ, टोटल 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे. आंसर विल बी 10, ऑप्शन ई. सॉल्यूशन निकालने नहीं है तो उनको निकालने नहीं बैठेंगे. क्लियर है. अगर किसी एक केस में होता कि x से भी 2 सॉल्यूशन मिल रहे होते तो 2 × 2 4 हो जाता उस केस में. क्लियर है, इज इट क्लियर. ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ई 10. क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा सवाल था. नेक्स्ट वन. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस. आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे. मॉड्यूलस में जो थोड़ा बहुत टेंशन रहा होगा, मॉड्यूलस के क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और चीज़ें समझ में आएंगे कि मॉड्यूलस के क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है, या इनइक्वालिटीज़ को अप्रोच कैसे करना है. इनइक्वालिटीज़ आर नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली, बट अदरवाइज यस दे
डू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज दे आर नॉट इक्वालिटीज़ नहीं होती ना, इक्वालिटीज़ आसान होती है, इक्वेशंस आसान होती हैं, इनइक्वालिटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बट इफ़ यू अंडरस्टूड देन इट्स ईजी। ओके, अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर।